Hey, welcome back. This is Sumit Kumar, and what I'm going to do in this video, I'm going to some questions related to in connected set and components of connected set in rational number. You know, ये connected sets भी कुछ इस टाइप से questions होते हैं जहाँ पे हमेशा एक particular pattern type का question like number of surjective continuous function from this set to this set or vice versa always पूछा जाता है almost all exams में. So I will try to in this video I'll try to deal with those kind of questions with concepts so that at the end you will be happy. You will get to know okay fine, these are the concepts I'm going to use. So let's start. This is the question here. So this question asks in CSR net, and of course it's going to helpful for you if you are going to write GATE exam 2018. It's really going to helpful. Okay, so here's the question. If A be a connected open subset of R2, the number of continuous surjective function from A closer to Q is. Okay, so यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि A कोई आपको कनेक्टेड सबसेट दे दिया है. किसका कनेक्टेड ओपन सबसेट दिया हुआ है? कनेक्टेड ओपन सबसेट ऑफ R2. Okay, then the number of continuous surjective function from A closer to Q is option 1, 0, 2 and not finite. होता क्या है ना कि देखिए, जैसे आपको कभी कभी R2 का कोई सबसेट दे दिया, R2 का सबसेट दे के पूछेगा कि उस सबसेट से Q के बीच में कितने फंक्शन होंगे, उस सबसेट के बीच में ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, उस सबसेट से इसके बीच में कितने कंटिन्यूस फंक्शन होंगे, उस सबसेट के बीच में कितने डिफरेंशियल फंक्शन होंगे एंड सो ऑन. क्या कलेक्शन ऑफ फंक्शन वेक्टर स्पेस बनाएगा? दिस आर सम I mean a natural question. One should ask this kind of natural question. And what I suggest is you should know this kind of questions. आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अप्रोच कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, आंसर गलत आ रहा है फाइन, बट हमारा अप्रोच बहुत मैटर करता है कि हम क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें. सो लेट्स स्टार्ट. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डील करें. सॉल्व स्टार्ट सॉल्यूशन. How to think this kind of question, how one should understand, that's important. So how to think here, right? So क्या चीज दिया हुआ है. So पहला चीज आप what is given here. So given आपको क्या दिया हुआ है कि A है, A is a connected open subset किसका? R2 का. तो let me first recall some basic facts. क्या है वो facts? So facts हैं. So if you are working over any topological spaces, doesn't matter if X tau is a topological space, any topological space, and A is a subset of X, this is connected. ठीक है, then A closer is also connected. So recall this basic fact. If A is connected subset of X, then that closer is also connected. This is true for any topological space. Doesn't matter if you are working over R2, R3, R4, R5 or any topological space. There are topological spaces which are not matrix space. That is also true, and I'll leave as an exercise. Please do and prove yourself. It's very interesting, very important result. This is going to become in all your analysis and topological questions where you have to use this kind of concepts. Okay, so this is one of the concept I'm going to use here. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसको मिटाते हैं. So ये चीज दिया, यहाँ पे ओपन का कोई जरूरी नहीं है. यहाँ एक चीज आप नोट कीजिएगा, एक कनेक्टेड में कोई ओपन का जरूरत नहीं है. ओपन का कोई जरूरत ही नहीं. ए कनेक्टेड है, ए क्लोजर भी कनेक्टेड है. ओपन आपको यहाँ पर वैसे दिखा, देखते हैं ओपन का यूज है क्या नहीं है, वो हमें भी देख के पता चलेगा. तो आइए इस चीज को देखते हैं. क्या हम यहाँ पे ओपननेस यूज करेंगे. एक कनेक्टेड ओपन सबसेट दिया हुआ है ना, बोला है क्या, क्वेश्चन क्या बोला है, नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए क्लोजर टू क्यू. सो आपने दिया हुआ है कि ए सबसेट है R2 का, जो क्या है, ओपन है प्लस कनेक्टेड. That's what you have given. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बस ये बोल सकते हैं ए क्लोजर जो होगा ये भी आपको कनेक्टेड होगा, करेक्ट है, प्लस क्लोज सेट, बिकॉज क्लोजर इज ऑलवेज
क्लोजर ऑफ एनी सेट इज क्लोज बाय डेफिनेशन, एंड जो कि कनेक्टेड आपने दिया हुआ है तो उसका क्लोजर भी कनेक्टेड हो जाएगा। ऐसे ओपन तो हम कुछ बोल नहीं सकते जब तक ए के बारे में आप पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, प्रॉपर सबसेट है कि कैसा है नहीं है, ए क्लोजर हो सकता है R2 हो जाए, नो इन्फॉर्मेशन। ओके, यहाँ तक हम बता सकते हैं। अब आइए, अब आपको चाहिए कितने सर्जेक्टिव कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे ए से क्यू के बीच में, ये ना पूछा गया है कितने कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव फंक्शन होंगे फ्रॉम ए क्लोजर टू क्यू। ए क्लोजर क्या है? अब देखिए, आपको चाहिए कि ये सर्जेक्शन भी होना चाहिए, you need surjection and you need continuity. These two things you need. This function should be surjective onto and this function should be continuous. ये दोनों चाहिए आपको। क्या लगता है आपको? तो आइए कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में थोड़ा रिकॉल करते हैं। कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन यहाँ से यहाँ के बीच में रहेगा, अगर ये कनेक्टेड है तो उसका इमेज को भी कहाँ, कनेक्टेड सेट को कहाँ भेजता है, कनेक्टेड पे। ये कंटिन्यूस फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है। क्लोज सेट का इमेज हो सकता है कि क्लोज ना हो, ऐसा होता है। कोई कंटिन्यूस फंक्शन आप फाइंड कर लेंगे जहाँ क्लोज सेट का इमेज क्लोज ना होगा, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन कनेक्टेड सेट का इमेज हमेशा कनेक्टेड होगा क्यू में। अब क्यू में कनेक्टेड सबसेट्स क्या है? बेसिक क्वेश्चन किया गया कि क्यू में कनेक्टेड सबसेट क्या है। क्यू जो है ना, क्यू में जो कनेक्टेड सबसेट है दैट सिंगलटन, और ऐसे स्पेस जहाँ सिंगलटन्स कनेक्टेड हो उसको हम लोग बोलते हैं टोटली डिसकनेक्टेड। ओके, सो दीज आर सम बेसिक फैक्ट्स यू शुड नो कि हाउ टू डील दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो इसके लिए मैं एक चीज खाली आपको रिकॉल करूंगा कि द कनेक्टेड सबसेट्स of Q are singletons, ठीक है, सिंगलटन्स होते हैं, दैट इज, ठीक है, तो ये सिंगलटन्स होते हैं कनेक्टेड सबसेट। बट आपको चाहिए नहीं भैया, यहां से यहां के बीच में हमें ऑनटू प्लस कंटिन्यूअस। भैया ये तो कनेक्टेड सेट है, ये तो आपका कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो इसका इमेज भी क्या हो जाएगा, कनेक्टेड। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, f कंटिन्यूअस फंक्शन यहां से यहां, ये कनेक्टेड सेट है, इमेज भी कनेक्टेड, आपको ऑन टू भी चाहिए, f क्लोजर इक्वल टू दिस, दैट मींस यहां से आपने बता दिया कि q इज कनेक्टेड, q इज कनेक्टेड। ये तो भैया बचेगा नहीं, q इज टोटली डिसकनेक्टेड। ये कोई भी आप रियल एनालिसिस का बुक उठाओ, जो भी आपके पास बुक हो, एनी ऑथर, वहां से भी आप फाइंड कर लेंगे कि क्यू के पास जो कनेक्टेड सबसेट्स हैं वो सिंगलटन है, बट क्यू तो मेरा डिसकनेक्टेड सेट है। इवन दो यू कैन से मोर, क्यू इज टोटली डिसकनेक्टेड। जहां सिंगलटन्स कनेक्टेड, ओनली सिंगलटन्स आर कनेक्टेड, दोस आर कॉल्ड टोटली डिसकनेक्टेड। सो वी अराइव एट अ कंट्राडिक्शन। सो दिस इज सो, अगर ऐसा हुआ, अगर वो आपको ऐसा फंक्शन चाहिए, तब तो हमें कुछ ऐसा चीज साबित हो जाएगा जो पॉसिबल ही नहीं है, वो गलत हो गया। तो कितने कंटिन्यूअस, ऑन टू जीरो, एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। अगर ऐसा मिला तो क्यू कनेक्टेड हो जाएगा, हमको पता है क्यू डिसकनेक्टेड है। Hence we arrive at a contradiction. Hence number of such onto continuous surjective map from A closer to Q is कितने? 0, एक भी नहीं, एक भी नहीं। ओपननेस हमने कहीं यूज नहीं किया, A is open कहीं यूज नहीं किया, कहीं नहीं, कहीं भी नहीं दिया। आपने बताया था कनेक्टेड ओपन सबसेट है, ठीक है, कनेक्टेड ओपन सबसेट है, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि कनेक्टेड है, ओपन है, मतलब इट शुड बी नॉन एम्प्टी। तो एक एक बॉल होगा, मतलब ए के बारे में बोल सकते हो कि ए इज मैक्सिमम कि ये नॉन एम्प्टी सेट है, ए आप नॉन एम्प्टी सेट दे दो, इतना काफी है मेरे लिए। ओपन का कोई जरूरत ही नहीं है, आपने कनेक्टेड दे दिया, नॉन एम्प्टी दे दिया, उसका क्लोजर भी कनेक्टेड हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच में मिल ही नहीं सकता कंटिन्यूअस में। हमने कहीं R2 का भी यूज नहीं किया, कहीं यार देखो हमने इस वीडियो में कहीं R2 यूज किया हुआ, ए सबसेट हो R2 का, क्लोजर, एनी टोपोलॉजिकल स्पेस। ये होता है मैथ्स, दिस इज द वे टू लर्न मैथमेटिक्स। सो ऐसे आप लोग थोड़ा सा अप्रोच करें, इस टाइप्स के क्वेश्चंस को ऐसे थोड़ा डील करें तो मजा आएगा, गणित सीखने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड यू विल रियली एंजॉय द सब्जेक्ट। इट्स रियली ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, लेकिन इसका ये ब्यूटीफुल तभी होगा जब इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे, आपको मजा आएगा, चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करोगे, देन यू विल गेट द फ्लेवर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो आई होप यू विल डू, and yes, so thank you for this watching my videos, and please subscribe my YouTube channel
and like my Facebook page, Nobel Forum India, and something is written for you guys. Think about it, and we'll meet soon, okay? And we'll do more mathematics. So thank you for watching my videos. It really means a lot to me. Thank you.